Hello everyone, welcome back to my channel. In this channel, you will find videos regarding life science examination like CSIR, DBT, ICMR, GATE and other examinations. So in this video series, we are going to start a new series on cell biology and this is the lecture first on the cell biology. So आज हम देखेंगे plasma membrane. So सेल वी नो दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल होता है वही कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है एंड दिस टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन एंड दिस ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड एट लास्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस. तो जो हमारा सेल द मेम्ब्रेन विच सराउंड द सेल इट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज़ अवर सेल एंड दिस इज़ द मेम्ब्रेन. अगर हम इस मेम्ब्रेन को इनलार्ज करके देखें तो वी कैन सी हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक लाइक. सो दिस इज़ अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इट इज़ अ बाई लेयर एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सो दीज आर द लिपिड मॉलिक्यूल विच आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्रे एंड ऑल द कलरफुल थिंग्स हेयर आर द प्रोटीन्स. The proteins can be various type and the lipids are also of different types. So in the upcoming lecture we will be studying in detail about the lipids and the protein. आज हम देखेंगे कि how the formation of plasma membrane take place and how what is the nature of lipid in the plasma membrane. सो एज वी हैव डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारा लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है. तो जो हमारा लिपिड होता है वो एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल होता है, मीन्स इट कंबाइन बोथ पोलर एंड द नॉन पोलर पार्ट. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलर एंड देन व्हाट इज नॉन पोलर. So we know that polar is any molecule which is which can which love water, which dissolve in water. So we can also say the hydrophilic molecule. जो भी water loving molecule होता है वो polar होता है. So जो भी चीज़ पानी में dissolve हो जाए वो polar है और water loving है. So we say it hydrophilic. Hydro means water, philic means loving. Now non-polar. So non-polar means which does not dissolve in water, which is hating the water, which try to repel the water. So hydro means water and phobic means डर. phobic means water से जिसको phobia है, जो water के पास नहीं रहना चाहता, that type of molecule are known as hydrophobic molecule. So in our lipids which make the membrane, they contain both type of the properties. They are polar also and non-polar also. So this is the very unique properties of the lipid. So due to this property the formation of plasma membrane take place. So in the upcoming slide we will see how the formation of the plasma membrane take place. So जो हमारा नॉन पोलर पार्ट है और पोलर पार्ट है दोनों ही मिलके हमारे लिपिड का फॉर्मेशन करता है. So this is the head group. So if we see the enlarged view of one phospholipid, पहले हमने सेल देखी, देन उस सेल में हमने उसकी जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन था उसको देखा इनलार्ज व्यू में, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनना है. तो हम इस लिपिड को पहले देखते हैं इनलार्ज व्यू में. तो हम ये देखेंगे कि ये जो है पोर्शन ऊपर वाला ये है हमारा हेड ग्रुप. दिस हेड ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स इट लव्स द वाटर. एंड दिस टेल ग्रुप्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल्स, मीन्स विच कैन बी सैचुरेटेड or unsaturated. Unsaturated means they have the presence of double bond in their structure, or saturated means there is no double bond present in their structure. So this hydrocarbon chain make the tail of the lipid. So head group होगा और tail group होगा. जो tail group होगा वो hydrophobic होगा और जो head group होगा वो hydrophilic होगा. So you must understand the difference between hydrophobic and hydrophilic. तो hydrophobic is water hating. You just try to remember one word which is hydrophobic, the another one will be hydrophilic. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए लिपिड और लिपिड में हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है. देन नाउ वी कैन सी कि जो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है बहुत सारे लिपिड कंबाइन होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं. तो वाई दे फॉर्म द बाइलेयर. तो एक क्वेश्चन आता है कि ये बाइलेयर ही क्यों बनाते हैं. सो हमारा जो लिपिड है वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वाटर को मीन्स मैक्सिमम रिपेल करने की कोशिश करेगा. इसलिए क्या होता है बाइलेयर की फॉर्मेशन होती है. जो लिपिड के हेड ग्रुप है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि हमारा जो सेल की इनसाइड है उसके अंदर भी पानी है और बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उस साइड कोई वाटर है. तो उसको अवॉइड करने के लिए वाटर के साथ जो इंटरेक्ट करता है वो होता है हमारे हेड ग्रुप, और जो हमारे टेल जो पार्ट होता है वो अंदर की तरह इम्पोज हो जाता है अंदर की तरफ
अपने आप को कर लेते हैं ताकि वो वाटर को मैक्सिमम अवॉइड कर सकें। तो इस तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि लिपिड ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसी के पास ही प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी, कि वो वाटर को भी ऐसा पोर्शन भी है जो वाटर को फेस कर सके और ऐसा पोर्शन भी है जो वाटर से रिपेल हो सके। तो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर विच सराउंड आवर सेल। सो दिस इज द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, एंड दीज आर द टेल्स विच विल बी हाइड्रोफिलिक इन नेचर, जो अंदर की तरफ जो होंगी अंदर की तरफ आ जाएंगे और जो वाटर को अवॉइड करेंगी। सो वन थिंग इज़ ऑल्सो देयर दैट हमारा कुछ चीज़ें तो माइसेली फॉर्म करती हैं और कुछ चीज़ें बाइलेयर की फॉर्मेशन करती हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइसेली एंड द बाइलेयर फॉर्मेशन? तो हमारा जो माइसेली फॉर्मेशन होता है वो हमेशा डिटर्जेंट से होता है, क्योंकि बिकॉज डिटर्जेंट के पास एक हेड ग्रुप होता है और एक सिंगल फैटी एसिड टेल होती है। तो जब भी ये वाटर के साथ हमारे डिटर्जेंट इंटरेक्ट करते हैं तो दे ट्राई टू फॉर्म अ माइसेली, बिकॉज जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो कोन और वेस्ट शेप होता है। सो दे कैन नॉट फॉर्म द बाइलेयर। अगर हम डिटर्जेंट को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे बाइलेयर के फॉर्म में, तो वहाँ पे वाटर से जो मैक्सिमम रिपल्सन है, जो टेल ग्रुप है वाटर से मैक्सिमम रिपल्शन नहीं कर पाएगा, उनको वो वाटर से अपने आप को बचाना है। सो दे ट्राई टू फॉर्म अ राउंड स्ट्रक्चर विच इज़ माइसेली। सो जो डिटर्जेंट्स हैं वो कोन और वेस्ट शेप्ड होते हैं और उनके पास सिंगल फैटी एसिड टेल होती है, इसलिए वो माइसेली का फॉर्मेशन करते हैं। बट जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उनके पास दो टेल होती हैं, एक की जगह दो टेल होती हैं। सो वो हमारा लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन करते हैं जो हमारा सेल होता है उसके अंदर। और अगर हम आर्टिफिशियली देखें तो वो हमारा हमारा लाइपोसोम सिंथेटिक मेम्ब्रेन में हम देखें तो वो लाइपोसोम फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं। सो लिपिड बाइलेयर सिंगल फैटी एसिड चेन से, फैटी एसिड टेल से नहीं बन सकता, उसके लिए टू टेल्स होना बहुत नेसेसरी है। और जो हमारा फैटी एसिड होता है वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है, मीन्स इट विल बी लाइक दिस, सिलेंड्रिकल होगा। तो वी कैन पुट वन सिलेंडर ओवर अदर। तो इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर सिलेंडर्स को रख सकते हैं, बट वी कांट पुट कोन एक दूसरे के ऊपर से, एक कोन दूसरे कोन के ऊपर से नहीं रखा जा सकता, जिसकी वजह से हमें वाटर से अपना जो टेल है उसको वाटर से मैक्सिमम रिपल्शन अटेन करना है। इसलिए वहाँ पे एक सिलेंड्रिकल जो लिपिड है वो दूसरे सिलेंड्रिकल लिपिड के ऊपर रख के बाइलेयर की फॉर्मेशन करता है। बट हमारा जो माइसिली है वो केवल फैटी एसिड से नहीं फॉर्म हो सकता, वो केवल डिटर्जेंट से फॉर्म हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल फैटी एसिड चेन की रिक्वायरमेंट है। और दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिपिड बाइलेयर एंड द माइसिली। सो होप यू अंडरस्टैंड कि लिपिड क्या होते हैं, उनमें दो तरह के कैसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे हमारा बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइसिली एंड द phospholipid bilayer. So in the upcoming lecture we will be studying about the lipids. The three type of lipid are present in the membrane. They are phospholipid, sphingolipid and the sterol. So in the coming lecture we will be studying the phospholipid in detail. So if you like this video, please subscribe to the like button. Thank you.